We are continuing with the topic of impulse and momentum. We have learnt about impulse momentum principle and conservation of momentum. These were the main highlights of this particular lecture. And we were doing numerical examples. And today is the last session in which we will deal with the remaining numerical problems. And if some numerical problems are not discussed in today's class, then you will have to study them on your own, because in the next class we will be starting with the new topic. Okay, anyway, now this is a very interesting question which appeared in IIT JEE examination 2014, and this is a very good application of conservation of angular momentum. So before going to this particular problem, let me explain to you one thing which I had promised you earlier. I told you at some point of time while we were discussing momentum, angular momentum, and all, that if a body is traveling in a straight path, let us say a body or a particle of mass m traveling along a straight line, not rotating about anything, nothing like that, simply traveling along a straight line with a velocity of v, then we can definitely say that the momentum of the particle is m into v. Now, if somebody asks you what is the angular momentum of this particle, then you would say that angular momentum is defined when some particle is executing circular motion about an axis. So let us say there is a point O on this plane in which a circular profile is drawn, and this mass is rotating about this axis along a circular path. Let us say that the radius of the circular path is r. And let us also say that the mass is revolving around this axis or about point O at a constant angular velocity of omega. Then you will say that the angular momentum h naught, or angular momentum about point O, is given by moment of inertia about point O multiplied by the angular velocity. See, in linear motion, mass is replaced with moment of inertia, velocity is replaced with angular velocity omega. Now let us expand on this. What is I naught? If the distance of particle m from the axis is r, what is the value of I naught? Somebody please tell me. mr square. It is mr square. So can I say that if a particle is rotating about an axis or about a point O, then the angular momentum about point O will be given by mr square omega, right? I naught is mr square and omega is the angular velocity. Now let me separate some components here. I will simply put m into r, and r into omega I am putting into one bracket. What is r into omega? V. It is Velocity. the instantaneous linear velocity v. So I can say that this is m into v into r, right? Now, what is this v that you have obtained? You have chosen to replace this product of r and w, r into omega, with velocity v. This is the instantaneous velocity. See, velocity is a vector, so you cannot say that v is constant, r is constant, and omega is constant, so v is also constant. No, because right now v is indicating this direction. When the mass is here, then velocity will be here. When the mass is here, then the velocity will be here. So velocity is continuously changing direction. The magnitude of velocity is constant. So this is the v, or the instantaneous velocity, that we are talking about, and that can be obtained as a product of r into omega.
So we decided that H naught is mr square omega. We joined r and omega to replace it with v. And now once again join this m into v. What is this? What is m into Linear v? momentum P. This is the linear momentum. So I can replace it with p. I can say that if v is the instantaneous velocity of the particle rotating around a circular path, then p is the instantaneous linear momentum. Now, what would you say about the product of p into r? Let me draw the figure once again. See, this is your angular momentum. Okay. Once again, we are drawing this circular path. So now I can say that if my particle is here and the velocity is directed along this direction, then I can say that particle of mass m has an instantaneous linear momentum of p, which is nothing but equal to m into v. And the perpendicular distance from the center is r. So what is the product of P into R called? What would you say about P into R? Okay, let me give you a hint. If I have a force vector, Moment से moment. it is the moment, right? If I have a vector F, if I have an axis, and I take the perpendicular distance of this force from the axis R, then I say that the moment of the force is defined as force into R. So what would you say if instead of force I am taking another vector which is simply momentum? So any vector multiplied by perpendicular distance from an axis gives you the moment of that vector. So if F into perpendicular distance is moment of force, then P into perpendicular distance must be moment of momentum. And if you recall what was taught in the notes earlier, let us go back and see what is written about angular angular momentum. Angular momentum के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखो. The angular momentum of a particle about any point O is defined as the moment of the linear momentum. तो ये अपन ने पहले ही थियोरेटिकल फॉर्म में इस चीज को समझ लिया था और इसको याद भी कर लिया था कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम I naught into omega. So using this logic, we now know that if the instantaneous linear momentum of a rotating particle is known, then simply by taking its moment of the momentum about an axis will give you the angular momentum about the axis. Okay. So now let me create another imaginary scenario for you. Let us say there is a plane and there is an axis perpendicular to the plane. See, this axis is perpendicular to the plane. And now a particle of mass m is traveling on this plane along a straight line with a velocity of v. Okay. Now, once again, if somebody asks you what is the linear momentum of this particle, you will immediately give the answer P is equal to m into v because it is traveling on a straight path. But now, if somebody asks you, does this particle, even if it is not revolving around the given axis, let us name this point as O. So this particle is not revolving around the point O. It is traveling along a straight line, and after some time, you will see that it will be very, very far away from O. Okay, but now somebody out of the blue asks you, give me the value of angular momentum. What will you do?
Will you say that angular momentum does not exist for this particle, or will you be able to come up with an expression for h naught? क्या So करोगे इस it, सिचुएशन? it will be the product of the linear momentum and the shortest distance between the axis and the Yes. platform. So, according to the concept or definition of angular momentum, it is simply the moment of the vector, which is p. See, p is a vector, velocity is a vector. वेलोसिटी का भी मोमेंट ले सकते हो, लेकिन वेलोसिटी का मोमेंट लेकर के अपन को कोई फायदा नहीं होता है. फोर्स का मोमेंट लेते हो तो टॉर्क मिल जाता है, मोमेंटम का मोमेंट लेते हो तो एंगुलर मोमेंटम मिल जाती है. तो दैट इज समथिंग मीनिंगफुल. सो इवन इफ अ पार्टिकल हैज प्योरली लीनियर मोमेंटम ओनली, you can put an axis, an imaginary axis anywhere in its periphery, and simply drop a perpendicular from O onto the existing vector, measure this perpendicular distance, and declare the product of mv, which is the linear momentum, multiplied by the perpendicular distance, and declare it as angular momentum about point O. तो आज अपन ने एक नई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि एंगुलर वेलोसिटी तो रोटरी मोशन में होती है, थीटा रोटरी मोशन में होता है, मोमेंट जरूरी नहीं है कि रोटरी मोशन हो, आप एक लीनियर वेक्टर का भी मोमेंट ले सकते हो. तो उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी एक लीनियर मोमेंटम के मोमेंट से बनाया जा सकता है. सो इवन इफ अ पार्टिकल इज प्योरली हैविंग लीनियर वेलोसिटी ओनली, नो रोटेशन, still you can calculate the value of angular momentum for it by defining an axis in its vicinity. ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम प्योरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही वस्तुओं का भी बनता है. एंड आफ्टर learning this new fact, now let us go and discuss this problem. अब इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. A horizontal circular platform, ये दिख रहा है आपको, of radius 0.05 meters. तो 0.05 मीटर इसमें क्या है? दिस इज द रेडियस 0.05 मीटर. ठीक है, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं अपन. एंड मास 0.45 kg. मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क इज 0.45 kg. ये भी दे रखा है, इसको कैपिटल एम ले लेते हैं. ठीक है. इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस. इसका एक्सिस ये दे रखा है, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस. टू मासलेस स्प्रिंग टॉय गन्स. अब ये देखो, ये दो टॉय गन यहां पर बना के रखे मैंने ऐसे, हालांकि फिगर में नहीं था, लेकिन आप बना लो, यहां पर दो टॉय गन ऐसे यहां पे चिपका रखे हैं. ठीक है. ईच carrying a steel ball of mass 0.05 kg. इन टॉय गन्स के अंदर एक एक बॉल रखा हुआ है, और उन बॉल्स का मास है, टॉय गन का मास नहीं है. ठीक है. एंड दीज टॉय गन्स आर अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर्स. तो इन दोनों टॉय गन्स की जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं. तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक टॉय गन चिपका रखी है, और इस तरफ को स्मॉल आर डिस्टेंस पे दूसरी टॉय गन चिपका रखी है, एंड स्मॉल आर इक्वल टू 0.25 दे रखा है. ठीक है. Each gun simultaneously fires the balls horizontally and perpendicular to the diameter in opposite directions. अब इन टॉय गन्स को किसी मैकेनिज्म से ट्रिगर किया गया, लेट अस से रिमोटली ट्रिगर किया गया, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है. So the steel ball contained in this toy gun will shoot out in this direction, and the steel ball contained in this toy gun will shoot out in this direction. ये दो बॉल्स मैंने यहां बना रखी है, ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में गोली दाग दी गई. ठीक है. After leaving the platform, the balls have horizontal speed of 9 मीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर पर सेकेंड है, opposite to each other. ठीक है, with respect to the ground. The rotational speed of the platform after this in radian per second will be how much? ये पता करना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? पहले
टॉय गन के अंदर जो स्टील बॉल है और ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ये सब चुपचाप से खड़े थे। एकदम से गोली चली, दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में बॉल्स शूट आउट हुई, स्ट्रेट बाहर की तरफ को चल गई। उसके इफेक्ट के कारण, उस झटके के कारण ये डिस्क रोटेट होने लग जाएगी। यू कैन इमेजिन दैट, राइट? अब आपको ये पता करना है कि गोली चलने के बाद एकदम से जो डिस्क का रोटेशन हुआ वो कितने रेडियन पर सेकेंड की ओमेगा से रोटेशन स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम कंजर्व्ड है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कंडीशन एक लगती है। देयर इज अ कंडीशन एप्लीकेबल। द कंडीशन इज देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और नो एक्सटर्नल फोर्स। नाउ इफ यू कंसिडर all these things as a part of one single system, डिस्क जिसका मास कैपिटल एम है, दोनों टॉय गन्स जिनके मास है ही नहीं, और उन टॉय गन्स के अंदर बैठी हुई दो स्टील की गोलियां जिनका मास स्मॉल एम है। सो दिस हैज अ स्मॉल मास स्मॉल एम, ठीक है? ये भी मास एम है, ये भी मास एम है। तो दो तो स्मॉल मासेस एम है और एक कैपिटल मास कैपिटल एम है। ये तीनों मासेस को आप एक सिस्टम मान लो। Now, due to some internal mechanism, these two small masses were triggered outwards. अब आपको ये पता करना है कि फाइनल इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी डिस्क की। तो इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, नथिंग वाज देयर। सो वॉट एवर द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज इनिशियली, it will be conserved and will be saved as the final momentum after the triggering of the balls also. ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली समझते हैं। लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। आई विल राइट, अच्छा इसको अपन ओ पॉइंट मान लें। लेट अस, ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट ही सारा अपन कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस डिक्लेयर दिस एज पॉइंट ओ, एंड नाउ आई कैन से दैट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, momentum about point O of the entire system initially when it was at rest, तो मैंने I suffix लगा दिया, must be equal to the angular momentum about point O of the entire system in the final state, तो suffix F लगा दिया। This is the statement of conservation of angular momentum, ठीक है? अच्छा, अब आप, हो सकता है कि किसी के मन में ये डाउट आए, भाई बॉल्स तो सीधे बाहर निकली है, इनकी लीनियर वेलोसिटी है, तो क्या इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते क्या? अब इसके जवाब में मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद ही मेरे को इसका जवाब दो कि आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना लगा के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों लगाना चाहते हैं? बाय। एनीबडी? हो सकता है क्वेश्चन आपके माइंड में आया ही नहीं हो। भाई इसमें लीनियर मोमेंटम भी तो है ना, गोलियां तो सीधे चली है और वो सीधे ही चलती रहेगी। Because we have already given the horizontal speed and we need to find the rotational speed. इसका रीजन ये है, अगर आपके सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स तो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं और कुछ कंपोनेंट रोटेशन करती है प्योरली, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगानी पड़ेगी। दैट इज द सिंपल रीजन। क्योंकि रोटेशन को तो लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। जो लीनियर ट्रेवल कर रही है उसका तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है, लेकिन जो प्योरली रोटेट कर रही है उसका लीनियर मोमेंटम थोड़ी निकलेगा। तो इसीलिए अब आप ये ध्यान रखना, इफ योर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ कंपोनेंट्स इन विच ऑल ऑफ देम आर रोटेटिंग, तब तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगी। इफ ऑल ऑफ देम आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तब तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगी। And if some of them are rotating purely and some of them are traveling along a straight line, then again you have to apply conservation of angular momentum only. रीजन समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया कि अपन इस वाली प्रॉब्लम में
एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपके सिस्टम में तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक तो स्मॉल मास एम ये वाला, एक स्मॉल मास एम ये वाला, और एक पूरी की पूरी डिस्क जिसका कि कैपिटल मास एम है। अब इसमें से स्मॉल एम वाले दोनों पार्टिकल्स तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, तो इसलिए आपके पास कोई चारा नहीं है, यू हैव टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम। दैट विल गिव यू द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इसका रीजन समझ में आ गया कि अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। भाई अपने सिस्टम में तीन मासेस हैं, दो तो स्मॉल एम है, दोनों इक्वल है, और एक कैपिटल एम है डिस्क का मास। ठीक है, इनिशियली सिस्टम कैसा था? ये अपनी डिस्क रही, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज पॉइंट ओ। अब मैं गन तो नहीं बना रहा, मैं छोटा एम बॉल के रूप में दिखा रहा हूं बस। दोनों बॉल यहां पर बैठी हुई हैं, चल नहीं रही। डिस्क भी खाली चुपचाप बैठी हुई है, चल नहीं रही। ठीक है, डिस्क का कैपिटल आर रेडियस है और मासस जो है वो स्मॉल आर रेडियस पे लोकेटेड है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट कैसा है? This is the disk, but now this mass has shot in that direction, and this mass has shot out in this direction. Let us say with velocity capital V. ठीक है, और इसके चलने से डिस्क का जो एक रोटेशन भी स्टार्ट हो गया है। क्या आप इसका रोटेशन जज कर सकते हो क्या? In which direction will the disk rotate? Look at the direction in which the bullets have shot out and tell me in which direction the disk will rotate. Clockwise या anti clockwise? एंटी क्लॉकवाइज। It will rotate in the anti clockwise direction. क्यों? क्योंकि आप देखो मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि v जो है जिस डायरेक्शन में गई है m पार्टिकल का, वो तो अपना किस डायरेक्शन में रोटेशन दे रही है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रही है। तो इस पे न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लागू होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप किसी पिस्तौल से गोली चलाते हो, तो गोली तो आगे जाती है लेकिन झटका पीछे को लगता है। तो मास अगर वेलोसिटी v से गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में चलती है, तो डिस्क पर जो रोटेशनल झटका लगेगा वो उल्टे दिशा में लगेगा। So the eventual rotation of the disk will be in the anti-clockwise direction. But you don't have to worry about it. अगर आपको ये गेस करने में मुश्किल हो रही है कि यार क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको भूल जाओ, आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही उसका आंसर दे देगी आपको। एंड लेट अस सी हाउ। भाई इतना तो पता है कि इसका अगर मैं बॉल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, वो आपको फिगर में देख के पता लग रहा है। बट एनीवे, now somebody please tell me what is the value of initial angular momentum of the entire system? जीरो। It is zero, क्योंकि दोनों मासेस की कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, डिस्क की कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, they are all stationary. So I can say that h naught of the system in the initial condition is zero. Now let us calculate h naught of the system in the final condition once the balls have shot out. बताइए, एनीबॉडी अटेम्प्ट करो, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाले डिस्क का मास कैपिटल एम है,
So 2 into small MVR plus I naught omega final. Yeah. अच्छा, अब एक काम और अपन को करना पड़ेगा. वी हैव टू एज्यूम that clockwise rotation is positive and anti-clockwise rotation is negative, और वाइस वर्सा, जो भी आपकी इच्छा है. लेकिन अब आपको जहां पर वैल्यूज आ रही हैं वहां पर एक दिशा को तो पॉजिटिव माननी ही पड़ेगी. अगर लीनियर ट्रैवल होता तब तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं. लेकिन यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से किसी एक को मानना पड़ेगा पॉजिटिव और दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सो लेट अस चूज टू select the clockwise direction as positive and anti-clockwise direction as negative. And now tell me कि इस बॉल का ये वाला जो स्मॉल एम वाला बॉल है, दिस वन, इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कितना है? प्लस और माइनस साइन सब लगा के बताना. भाई फाइनल स्टेट में आपको तीन ही तो मासेस आपने सिस्टम में ली हैं. तीनों मासेस की एच नॉट निकालो. पहला मास एक बुलेट बॉल है, दूसरा मास भी बुलेट बॉल है और तीसरा मास डिस्क है. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम अबाउट ओ? बताओ. तो डिस्क का बुलेट का एंगुलर मोमेंटम बताओ. एम इंटू V minus MV. इंटू एम इंटू वी इंटू स्मॉल आर. राइट और रॉन्ग? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, MVR. एम MVR. वी आर प्लस या माइनस? तो माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस. जरा ध्यान से देखो. सर क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज. प्लस सर. इट इज क्लॉकवाइज, तो इट विल बी पॉजिटिव. तो एक बुलेट का तो एमवीआर हो गया पॉजिटिव, ठीक है. दूसरे बुलेट का क्या है बताओ? तो उसका भी सेम ही होगा फिर तो. उसका भी एमवीआर है और वो भी क्लॉकवाइज है. सो द सेकेंड एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो एमवीआर and this is also in the clockwise direction, so we put it as a positive angular momentum. अब रही डिस्क की बात. डिस्क भी अलग से चलते हैं. प्योर रोटरी मोशन ले रहा है, लेटस से ओमेगा से. अब ये पता नहीं इधर को है कि इधर को है, अभी मान लो हमें नहीं पता. ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा भी अपन को नहीं पता, ठीक है. लेकिन डिस्क का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता ही है. अगर डिस्क का मास कैपिटल एम है और डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, तो ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना है? बताइए. ये रटी हुई क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी. एम स्क्वायर. इट इज हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम. ठीक है, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. इट इज हाफ एम आर स्क्वायर. अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना है? अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हो, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क अबाउट ओ? सर आई ओमेगा. आई नॉट इंटू ओमेगा. ठीक है. तो अब चूंकि आपको ओमेगा की दिशा नहीं पता, तो आप इसको ऐड कर दो. फाइनल में आप ये कहो कि ये इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है आई नॉट इंटू ओमेगा रख रहा हूं मैं. भाई आई नॉट तो मुझे पता है, लेकिन ओमेगा की दिशा जब तक मुझे नहीं पता कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मैं प्लस और माइनस का जजमेंट नहीं कर पा रहा. तो इसको छोड़ दो आप, तो आई नॉट ओमेगा को प्लस करके लिख दो. ठीक है. एंड नाउ by the conservation of angular momentum, initial angular momentum must be equal to final angular momentum. Final angular momentum ये है, initial angular momentum ये है. So if I make the equation, I will simply say 0 equal to 2 mvr plus I naught की वैल्यू अब ले लेते हैं हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है क्या? देख लो.
राइट और रॉन्ग? यस सर। अब ओमेगा आराम से निकल जाएगी। 2 MVR को लेफ्ट साइड में लिया हो, सो योर ओमेगा should be easily found by -4 MVR upon mR²। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें m की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल B, सारी वैल्यूज आपको प्रॉब्लम में दे रखी है। यू सब्स्टिट्यूट इट एंड ट्राई टू सी whether you get this answer or not. -4 रेडियन पर सेकेंड। हेलो। अब ये -4 रेडियंस पर सेकेंड का मतलब क्या है? ओमेगा की वैल्यू आ रही है -4 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस माइनस साइन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। इससे ये पता लग गया कि भाई हमने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहे हैं। अब अगर आंसर आपको नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब द डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई सबको? आई होप। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें आपको एक पहली बार आज पता लगा कि स्ट्रेट ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट्स का भी एंगुलर मोमेंटम निकलता है। So that is why this question was extremely important. ठीक है, चलो अब अपन और एक ऐसी प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। Let us discuss problem number 7। ये प्रॉब्लम हो गई अपनी। अच्छा, अनदर थिंग, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम IIT JEE। दिस यू डू योरसेल्फ। डू योरसेल्फ का मतलब आप, ये पूरी सॉल्व्ड है, इसका सॉल्यूशन पूरा इसके अंदर है, आंसर भी है। यू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, दिस आई लीव टू यू। ये भी वही है, एंगुलर मोमेंटम की कहानी है इसमें भी, ओके सर। बट ये आप लोग अपने आप पढ़ के समझें। नाउ लेट अस गो टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस डू दिस। प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired into a body of mass 1 kg which is suspended by a string 1 meter long। ठीक है, तो इसकी कहानी कैसे है? कभी भी ऐसे मोमेंटम के क्वेश्चन आए तो एक रफ फिगर बना लेना सही रहता है। A bullet is moving in this direction. The mass of the bullet is, let us say, small m. The velocity with which the bullet is moving is unknown, and actually that is what you have to find out in the question. ठीक है, and now it is going to hit a block of capital M mass which is suspended like a pendulum with a string of length 1 meter। ठीक है, तो अभी इसको 1 मीटर भी ना लें, इसको एल ही ले लेते हैं। फॉर्मूले बनाने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉडी, यानी कि बुलेट जैसे उस पर स्ट्राइक की वो उसके अंदर घुस गई और वहीं पे रुक गई। एंड ड्यू टू द इम्पैक्ट द बॉडी स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 11.2 degrees। Find the velocity of the bullet with which it was initially fired. This is what is intended here। तो इन्होंने बोला कि गोली मारी इस पेंडुलम पे, फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आई जिसमें कि गोली इसके अंदर एम्बेड हो गई। नाउ दे हैव बिकम वन मास। ठीक है, एंड एट दिस स्टेज लेट अस से कि जैसे गोली इसमें धसी, इसकी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पोजीशन से चालू हुई, लेट अस से दैट इज कैपिटल V। ये कहानी अपन बना रहे हैं, ये कहीं दी नहीं है। ठीक है, आपको तो ये पता करना है कि गोली लगने के बाद
द बॉडी स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 11.2 डिग्रीज। इसका मतलब है 11.2 डिग्री से पेंडुलम ऊपर को स्विंग हुई और वहां जाके रुक गई। सो देयर इज अ थर्ड स्टेज in which this is the datum, and from this datum it swings upwards गोली इसमें अभी भी है, but now this has gained a height of, let us say, h meters. This angle is 11.2 degrees. 11.2 डिग्री ऊपर स्विंग होकर के वहां पर जाकर के रुक गई। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम में कई सारे जने एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? लेट मी गिव यू अ थियरी अबाउट दिस, ठीक है? यू टेल मी वेदर दिस थियोरी इज करेक्ट और नॉट। अभी मैं ये सोच रहा हूं इसमें मैं मोमेंटम मोमेंटम वगैरह क्यों लगाऊं? आई हैव गॉट अ टोटली न्यू रेडिकल थियरी अबाउट इट। गोली की इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है? तो मैं तो कहूंगा कि भाई पहले तो पेंडुलम में कोई एनर्जी नहीं है, खाली पड़ी हुई है पेंडुलम, ना तो हिल रही है ना कोई इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बस जो भी एनर्जी है गोली की है। गोली की एनर्जी को मैं कभी भी हाफ mu स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो आई कैन से दैट इफ आई कंसिडर दिस होल थिंग एज वन सिस्टम, then in the initial stage I have only one energy, that is half mu square. और फाइनल स्टेज में आप सिस्टम को देखें, पेंडुलम ऊपर को जाकर के रुक गया है h हाइट पे, और अभी पेंडुलम का मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ द पेंडुलम इन द फाइनल स्टेज? बुलेट का मास स्मॉल m है, पेंडुलम का मास कैपिटल N है। इस स्टेज में मास कितना है? सही है क्या? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल स्टेज में टोटल एनर्जी कितनी है? इट इज सिंपली मास इंटू जी इंटू एच, राइट और रॉन्ग? बताओ भाई, मैंने एक भी चीज अभी तक गलत बताई क्या इसमें? कि सिस्टम में पहले टोटल एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर गोली की। बाद में गोली उसमें धस गई और गोली उस ब्लॉक को लेते हुए एच हाइट तक चढ़ गई, और एच हाइट में निकाल सकता हूं आराम से ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। तो अब एच हाइट पे बढ़ गई, मतलब उसने टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। ये बेसिकली एक काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं हो गया क्या? सिंपल बताओ भाई, ये बीच वाली यस स्टेज सर। क्यों बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाली स्टेज को मारो गोली, कोई इट इज यूजलेस। आई कैन सिंपली से कि पहले दिखाओ पिक्चर क्या थी, गोली आ रही है तो टोटल एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, और कोई एनर्जी नहीं है। फाइनल स्टेज दिखाओ, गोली और ब्लॉक अपनी ओरिजिनल डेटम से एच हाइट पे ऊपर तक स्विंग हुए और वहां जाके रुक गए, तो अब तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, अब उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज m प्लस एम इंटू जी इंटू एच। कैन आई नॉट इक्वेट दीज टू एंड सिंपली डू अवे विद दिस? मेरे को m प्लस एम पता है, g पता है, यस h सर। पता है, कर सकते हैं ना? लेकिन ये गलत है, और यहीं पे फंस जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज वेयर यू मेक अ बिग मिस्टेक। नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड? कहाँ लॉस हो गया इसमें? सर वो भाई अगर ये स्प्रिंग में, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लॉस हुआ है ना? कहाँ हुआ है लॉस? सर स्प्रिंग में। ये गोली इससे टकराएगी और इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी तो थोड़ा सा हीट जनरेट होगा। यस सर। सर वहाँ पे हीट लॉस हो जाएगी। इन एनी इम्पैक्ट विच इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें भी प्लास्टिक इंपैक्ट होता है, पार्शियली भी प्लास्टिक इंपैक्ट होता है, उसमें एनर्जी का लॉस पक्का होगा। तो इसलिए आप ये सिंपल अप्रोच इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते।
And this is the big problem. This simple approach is what comes to your mind initially. सबसे पहले माइंड में यही चीज आती है कि यार यही कर लो ना सीधे सीधे. फर्स्ट स्टेज में काइनेटिक है, सेकंड स्टेज में पोटेंशियल है, इक्वेट कर दो, गलत आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस है. और वो एनर्जी लॉस आप निकाल भी नहीं सकते. अगर वो एनर्जी लॉस अपन निकाल लेते किसी तरीके से तो मैं उस एनर्जी लॉस को इसमें से माइनस कर देता और फिर इसको इक्वल कर देता, फिर इसको इक्वल कर सकता था. लेकिन ये एनर्जी लॉस मैं निकालू कहां से? रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक और बुलेट तो दे ही नहीं रखी. कितना पेनेट्रेशन हुआ, कितने डिस्टेंस तक पेनेट्रेट हुआ, इट इज नॉट गिवन. So that is why we have to take an intermediary stage, and then the approach of the problem is like this. Okay? Now what I am going to say is, consider this as state 1, consider this as state 2, and consider this as state 3. Okay? Now, between state 1 and 2, I can apply conservation of momentum, but not conservation of energy. And between state 2 and 3, I can apply conservation of energy. ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टेट 2 क्या है? गोली ब्लॉक में धंस चुकी है, तो जो भी एनर्जी का लॉस होना था हो गई. और उस एनर्जी के लॉस के बाद में कंबाइंड ब्लॉक और बुलेट की वेलोसिटी v है, और उस v से स्टार्ट हुई कहानी. अब एक नई कहानी स्टार्ट हुई सेकेंड स्टेज में. अब ये बताओ कि धंस चुकने के बाद v वेलोसिटी से जब कंबाइंड ब्लॉक ऊपर को उठने लगे और थर्ड स्टेज में h हाइट तक वो उठ जाए, इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी लॉस दिख रहा है क्या आपको? Can you find any energy loss in between 2 and 3? नो सर. इसमें अब कोई एनर्जी लॉस नहीं है. तो अपन क्या कर सकते हैं? सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं. और 1 और 2 के बीच में एनर्जी का लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगी. क्योंकि m और स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है वो इन दोनों के बीच की बात है. आपने कोई तीसरा सिस्टम में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहीं डाला ही नहीं है, कोई और फोर्स नहीं आई है. तो भले ही एनर्जी का लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी कंसर्न्ड दो मासेस के बीच के इंटरेक्शन से कोई एनर्जी लॉस हो रही है, कोई इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसको अपन मोमेंटम के लॉस में कंसिडर नहीं करते. मोमेंटम इज नॉट लॉस्ट बाय इंटरनल इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम until and unless there is some external influence involved. तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अब आप मेरे को सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके बताओ. Apply conservation of momentum for stage 1 and stage 2. I will simply say that momentum of the system at stage 1 must be equal to momentum of the system at stage 2. मैं सिर्फ इतना कहूंगा. अब आप इसको बता के मुझे बताओ ये कैसे लगेगी. इक्वेशन बताओ इसकी. कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम है यहां पे. लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. भाई इतना क्या कंफ्यूजन है? mu is equal to m plus mv. वेरी गुड. इनिशियल स्टेज में कैपिटल M की वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो उसका मोमेंटम तो जीरो है. जो भी मोमेंटम है सिर्फ बुलेट की है. बुलेट की वेलोसिटी को u माना है आपने और मास m है. तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट स्टेज 1 और p sys 1 इज सिंपली m into u. अब स्टेज नंबर 2 पे आ जाओ. स्टेज नंबर 2 पे मास तो दोनों कंबाइन हो गए, तो इसका मास हो गया m प्लस कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी आप v मान रहे हो. आपको पता नहीं है v, लेकिन v मान लो.
ठीक है. So in the second stage, the total momentum of the system is m plus capital M into v. This is the application of conservation of momentum for stage 1 and stage 2. अब अपन को क्या करना है, अपना ओवरऑल एम क्या है, ये सारी कहानी बता करके व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड आउट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट. आपको यू पता करनी है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, कि बुलेट किस गति से दागी गई थी. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है. अब सेकेंड स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि देखो अब आपको इस एक इक्वेशन से तो यू मिल नहीं रही ना, क्योंकि इसमें v भी अननोन है. छोटा m पता है, बड़ा m पता है, u पता करना है, v नहीं पता. तो अब इस v की तलाश में अपन सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे. अब हमने ये देखा कि भाई जो एनर्जी लॉस होनी थी वो तो हो गई. नाउ बिटवीन स्टेट नंबर 2 एंड स्टेट नंबर 3 आई कैन अप्लाई this equation or not, you tell me. Applying conservation of energy, half of m plus m v square. देखो स्टेट नंबर 2 में आप जिस लेवल पे ये पेंडुलम बैठा है, इस लेवल को डेटम मान लो. और डेटम का क्या मतलब होता है, डेटम मींस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0. तो इस स्टेट नंबर 2 में इसकी एक वेलोसिटी है कैपिटल V, कंबाइंड मास की, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई स्टेट नंबर 2 में, इट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी और हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ठीक है. फाइनल स्टेट देखो स्टेट नंबर 3, जिसमें कि ब्लॉक जितना उठना था उतना उठ चुका और वहां पर जाकर के रुक गया. तो फाइनल स्टेट h लेवल ऊपर है डेटम से, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है. तो टोटल एनर्जी इन स्टेट नंबर 3 बताओ मुझे कितनी है. What is the total energy of the system in state number 3? m plus m gh. It is simply m plus m into g into h. It's a positive potential energy due to gravitation. mgh का फॉर्मूला लगेगा. ये हो गई आपकी एनर्जी इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट नंबर 2 एंड स्टेट नंबर 3. Now let us conveniently cross this out. So the equation becomes v square by 2 equal to gh. क्लियर हो गया. अब इससे v निकल जाएगी. अब इसमें एक h निकालना बाकी है. अब आप मेरे को इस फिगर में देख करके, ये फिगर में एक और बार बताता हूं, बना देता हूं यहां पे, आप निकाल के बताना h कैसे निकलेगी. This is the final state, 11.2 degrees. ये नया डेटम, ये ओरिजिनल डेटम. This is height h. One minute. सर इसकी बताओ. लेंथ, See, let us say that the length of the pendulum is L. तो ये देखो ये भी L ही हुई. अपने ओरिजिनल डेटम पे था तब ये टोटल लेंथ L है, और जब सर उठ करके L, गई, सर H L बताइए माइनस कैसे. L कॉस, सर L माइनस L कॉस 11.2. वेरी गुड. सही है कि नहीं. L पता है 1 मीटर है, तो आपको H भी निकल जाएगी. H मिल गई तो H की वैल्यू इधर डालिए, अंडर रूट 2gh से V मिल जाएगा. एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ V, you go back to the conservation of momentum equation and put your value of V here, then you will get the value of U. ठीक है. This is how you solve this question. क्लियर हो गया कैसे किया है अपन ने. Yes, sir. ओके.
तो आज मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई बाकी फैकल्टीज से, और जहां तक मुझे पता लगा है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो आराम से अभी जनवरी में भी थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ नियम है कि उनका एडमिशन जब हो जाएगा तो एक महीने और क्लास चलेगी। सो गिवन द कंडीशन दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस, तो अभी मैं चाहता था कि आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी इसमें सॉल्व कराऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सॉलिड हो जाएं इसके। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। अभी कौन कौन से प्रॉब्लम अपन ने कर ली, ये वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यू ट्राई इट आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू अप्रोक्सीमेटली 61.74 के आसपास आना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ड्यू टू कैलकुलेशन एरर्स। सो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये वाले प्रॉब्लम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ये तो चलो सिंपल है, वी विल डू दिस। ये वाली प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते हैं। इसमें जहां पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है तो उसमें मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ठीक है। वापस से मैंने एक बुलेट इसके ऊपर छोड़ा, स्मॉल m, with a velocity of u, and it strikes the block, and the block and bullet slide over the surface with a velocity of v and move to a new position। तो इस वाली स्टेज और इस वाली स्टेज के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जब ये ब्लॉक स्लाइड होता हुआ आगे जाएगा, एक सेकेंड, जब ये ब्लॉक स्लाइड होता हुआ आगे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन होगी सरफेस के साथ में। नाउ the original system that you considered was simply the block and the bullet, the floor was not part of the system। ठीक है, अब ब्लॉक और बुलेट के इंटरेक्शन होने के बाद जब ये कंबाइंड फॉर्म में आगे को सरकती हुई जाएगी तो देर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें फ्लोर का इंटरेक्शन हो रहा है आपके सिस्टम के साथ में। सो दैट इज गोइंग टू टेक अवे सम मोमेंटम। जो फ्लोर है या अर्थ है वो आपके सिस्टम में से मोमेंटम खाएगी क्योंकि उसका इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ये हवा में होती तो अपन इसकी बात नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें बुलेट लगने के बाद जहां पे स्लाइडिंग मोशन होती है तो उसमें यू हैव टू बी केयरफुल वेयर यू आर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम इसको स्टेज 1 मानूं और इसको स्टेज 2 मानूं, यानी कि अभी ये स्लाइड होना स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ गोली इसमें धस गई और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी भी हो गई, क्या मैं 1 और 2 स्टेज के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं क्या? ये आप बताओ। ये स्टेज 3 है। Can I apply conservation of momentum between stage 1 and 2? Stage 2 being a stage where the sliding of the block has not yet started. The bullet has simply embedded itself. That's all. You tell me. बताओ। सुनाई दे रहा है क्या आपको? यस सर। क्या लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं 1 और 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यस सर। वी कैन Yes, sir. अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 और 3 के बीच में नहीं लगेगी क्योंकि फ्लोर का इंटरेक्शन सेकेंड स्टेज के बाद स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या इज देयर एनी एनर्जी लॉस इन द सिस्टम बिटवीन 1 and 2? एनर्जी लॉस होती है। यस सर। कौन सी एनर्जी लॉस है?
सर वो पेनिट्रेट होगा इस वजह से। जो बुलेट बुलेट और ब्लॉक में जब एम्बेड होगी तो उनके इम्पैक्ट के कारण, ड्यू टू द इनइलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ द बुलेट एंड ब्लॉक, ये जो अंदर घुस रही है उसके कारण थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, ड्यू टू द पेनेट्रेशन, एंड द पेनेट्रेटिंग रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर एंड द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर। तो इन दोनों के कारण थोड़ी सी हीट लॉस तो होगी, लेकिन यहाँ जो एनर्जी लॉस हो रही है वो इंटरनल एनर्जी लॉस है, वो बुलेट और ब्लॉक के बीच के आपस की एनर्जी लॉस है, उससे मोमेंटम लॉस नहीं होगा। गॉट इट? एनर्जी लॉस जो ब्लॉक और फ्लोर के बीच में हो रहा है वो मोमेंटम लॉस भी कॉज करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो एनीवे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर।